Warm welcome to Career Defense School. I'm a faculty of Career Defense School. I have a sample paper of Russia Military School, Class 9. Today I'm going to solve English sample paper, and this paper consists of 25 questions and each question carries 2 marks. So the entire section would be of 50 marks. So let's get started. So, okay, first we read the instructions. Choose the word opposite in meaning to the word given word and mark it in the answer sheet. If you have notebook, then you can mark. Okay, let's get ahead. 45. 45 means strong, right? The meaning of 45 is strong. Means कि protect, किसी अटैक से बचाने के लिए अपने आप को strong बना. Means strengthen, weaken, undermine, intensify. 45 means अगर आप बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो तो स्ट्रेंथन तो नहीं जाएगा इसके साथ बिल्कुल. It would not go with this 45. So we cut this one because 45 and strengthen both are same. But here we have to find antonym means. Okay, one thing more I want to tell you. Sometimes instead of opposite, antonym word is written. But some but I have seen some of the students they get confused. Like antonym and opposite both are same. Antonym means opposite, right? So weaken, कमजोर बनाना, undermine किसी को बहुत ज्यादा undermine करना, to make less confident, intensify बढ़ाना. तो ये तो नहीं जा सकता है. This one is wrong. This is also wrong. This is also wrong. So 45 opposite would be weaken, right? Weaken. So this one is right. Okay. Now we move on to second one. Ostracize. Ostracize means exclude from society. Society से जब exclude किया जाता है, निकाला जाता है, right? Here we have four options. Let's see. Crucify means one who is nailed to the cross, like put someone to death by nailing. Nail लगा के किसी को मारना. Okay. I give you an example of Jesus Christ. He was nailed to the cross. He was nailed. He was crucified. Discard means मना करना, खंडन करना. Patronize. Patronize means to be kind but make feel inferior. Kind तो होना but दूसरों को inferior feel कराना. Ostracize अगर निकाला जाता है सोसाइटी से तो allow करना means allow करना, आज्ञा देना. So opposite is allow. So these two are clear. Third, we have abstain. Abstain means restrain oneself from doing something. किसी को कोई काम करने से मना करना. किसी को कोई काम करने से मना करना. Repel. Repel का मतलब क्या होता है? पीछे हटना. Indulge. Indulge किसी चीज में indulge होना. Disgrace. Dishonor. Dismiss. खारिज करना. मतलब किसी को कोई जॉब से जैसे डिसमिस किया जाता है ना, वो होता है. तो अगर एब्सटेन करना, किसी को मना करना, तो इंडल्ज का मतलब तो होता है कि किसी चीज में इंडल्ज होना, प्रेजेंस होना, राइट? तो एब्सटेन का क्या होगा? आंसर बी. दिस वन इज करेक्ट. नाउ वी मूव ऑन टू फोर्थ वन. अनअप्रोचेबल, अनक्लियर, एक्सेसिबल, कैजुअल, विदड्रॉ. अनअप्रोचेबल मीन्स इस पे हम पहुंच नहीं सकते हैं, राइट? अनक्लियर. ओके, अनक्लियर का मतलब तो हुआ कि क्लियर नहीं है. एक्सेसिबल मीन्स जहाँ पे पहुंचा जा सकता है. कैजुअल मीन्स जो बिल्कुल कैजुअली लिया जाता है, आम वे में, जनरल वे में. विड्रॉ मतलब पैसा निकालना. ओके, अनअप्रोचेबल एंड अनक्लियर तो बिल्कुल ही नहीं जा रहे हैं. अनअप्रोचेबल मीन्स जिसपे नहीं पहुंचा जाए, तो एक्सेसिबल मीन्स जिसपे पहुंचा जाए. सो ऑपोजिट of unapproachable is accessible, right? So this one is correct. Now we move to another one. Misanthropist, philanthropist, pragmatist, zealot, and shun.
Misanthropist. Misanthropy means a person who dislikes humankind. वो पर्सन जो मानवता को इंसानियत को पसंद नहीं करता है, that person is called misanthropic. Philanthropist, one who likes humankind. Pragmatist means one who takes things in a practical way. हर चीज practically सोचता है, वो principles पे नहीं विश्वास करेगा, practically. Zealot. Zealot means courage. Shun means शन कर देना, किसी इंसान को बहिष्कार कर देना, कहते हैं ना, डोंट एसोसिएट विद दोज बैड बॉयज, शन देयर कंपनी मींस लीव करना किसी को, राइट? सो मिसएंथ्रोपी मींस जो हेट करता है, फिलैंथ्रोपी मींस जो पसंद करता है. तो ऑपोजिट वुड बी philanthropy. So this one is philanthropist, right? So this one is correct. I hope first five would be clear to all of you. Now we move on to sixth question that we have, direction. So what we have to do in this question, 6 to 10 questions, we have 4 words are given in each sentence in question, out of which only one word is correctly spelled. अब हमें क्या है कि एक ही वर्ड है, हमें स्पेलिंग देखना है. जो फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो वर्ड करेक्ट है उसको हमने फाइंड करना है. फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. कंटेनमेंट, कंटेनमेंट, confinement, contentment होगा. contentment means satisfaction. क्या मीनिंग होगा इसका? satisfaction, right? तो मैं यहाँ पे इसका लिख देती हूँ कि एग्जैक्ट क्या होगा. कैसे लिखोगे आप? contentment, not containment. contentment है, contentment. So this one is not right. confinement मतलब एक चीज पे बहुत कन्फाइन हो जाना, वहां पे जैसे कहते हैं ना कि ये पर्सन एक रूम में कन्फाइंड है, सीमित या बंधित, राइट? कंसीलमेंट, कंसील मतलब कोई चीज छुपाना. कंसील, CONCEAL होना चाहिए यहाँ पे. कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट मीन्स लाइक कोई डिस्पैच होना, जैसे कोई गुड्स है, कंसाइनमेंट आपकी शिपमेंट है या फिर कोई डिलीवरी है, मीन्स आपको एक अलाउ कर दिया गया है शिपमेंट के लिए या किसी कोई गुड्स है उनकी डिलीवरी के लिए, राइट? सो दिस वन इज करेक्ट. कंसाइनमेंट इज करेक्ट. कंसील का मतलब तो क्या होता है? कोई छुपाना, बट एक्चुअली स्पेलिंग देखने हैं हमें, तो स्पेलिंग गलत है. CONCEAL, राइट? कंसीलमेंट, कंसीलमेंट. contentment, CONTENTMENT, contentment. Confinement, CONFINEMENT. Concealment, CONCALMENT. Concealment. Consignment is the correct. Consignment is correct. Okay, now we move on to this one is correct. Find the correctly spelled word. Hygienic, hygienic, hygienic या hygienic. Yes, hygienic. hygienic होता है, hygienic, not hygienic. तो देखो जैसे जैसे वर्ड्स हैं आप वैसे वैसे बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा. hygienic, hygienic, no, hygienic, hygienic. Which one is correct? Hygienic. So B is correct. Hygienic. So B is correct. 8. Find the correctly spelled word. Dysfunction, destitution, deviation, diversion. Dysfunction, जब कोई चीज फंक्शन नहीं करती है. Destitution, destitution तो हो सकता है, means poverty. Diversion means जब दो रोड, सपोज एग्जांपल दे दी, डाइवर्ज का मीनिंग क्या होता है? अलग अलग हो जाना, डाइवर्स हो जाना, जैसे रोड्स डाइवर्स हो जाती हैं.
So this one is not correct. Destitution नहीं correct है. Poverty, diversion, divine से बना divination means deviate. So A is correct. Diversion में Diversion. Destitution Destitution. Divination Divination. So A is the correct answer. Now find the correctly spelled word congruous, auspicious, audacious, and hilarious. So, which one is correct? Let's see. Congruous. Congruous, right? Harmony means congruous means harmony. CONGRUOUS. एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे. Auspicious means जो बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ, बोल्ड, राइट? तो क्या है? बोल्ड होना. इसका मीनिंग है बोल्ड होना. Yes. Next we have congruous. Congruous means ये extra आ रहा है यहाँ पे. Auspicious, AUSPICIOUS, not S is extra हुए है. Audacious, hilarious. Hilarious means glad, cheery, elated, jubilant means बहुत खुश होने वाला. So audacious is the right answer. Audacious has correct spelling. So hilarious. So this one is not correct. Right? Find the correctly spelled word. Next we have perseverance, turbulence, surveillance या फिर obeisance. Obeisance means श्रद्धा होना किसी चीज में. श्रद्धा गुरुद्वारे जाते हो, कहते हैं ना he paid obeisance to गुरुद्वारा temple. तो spelling is OBISA. यहाँ पे A होगा. Preservance. Preservance, not PRESERVANC. Preservance. Turbulence. Turbulence इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कोई, आप कह लो कि मुसीबत आना, राइट? Turbulence means involving lot of changes, अशांति होना. Perseverance means effort, a continued effort to achieve something. Perseverance means जिसको हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा मेहनत करना, right? Perseverance. PRESERVANC. Surveillance. Surveillance means watch, custody. Surveillance means watch करना, custody में रखना, किसी की निगरानी. Surveillance SURVELLANCE. तो यहाँ पे गलत है. Preservance में RESER आएगा. Turbulence में ये wrong लिखा हुआ है, ये भी E आएगा यहाँ पे. Surveillance में क्या है? This one is also. Yes, this is correct. Surveillance is correct. Surveillance is correct, right? Not turbulence. This one is wrong. Obeisance. Preservance means effort करना किसी चीज को achieve करने के लिए. Okay, now we move on to 11th. Direction. Okay. A sentence or a part of the sentence are underlined. Below are given alternatives to the underlined part which may improve the sentence. Okay, now you have to choose the correct one. What should be the answer? Like, try to lower the amount of fat in your. Try to lower. Lower का मीनिंग क्या हो सकता है यहाँ पे? लूज करना, कम करना. कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए हमें. कट करना, कट से तो बहुत बन जाएंगे. कट ऑफ हो जाता है, कट आउट भी हो जाता है, कट डाउन भी हो जाता है. लोअर का है यहाँ पे तो क्या आएगा? डी आएगा. रिड्यूस करना, कम करना. अगर हम लगाएंगे तो क्या है कि ये पूरा क्या सेंटेंस कंप्लीट कर देगा. डी इज द करेक्ट. So you should cut off on the amount of cigarettes you smoke.
कट आउट, अब कट ऑफ का मीनिंग हमें बताना है क्या है, यू शुड कट ऑफ। इंस्टेड कट ऑफ की जगह पे अगर हम, क्या हमें सेंटेंस को ठीक करने की कोई रिक्वायरमेंट है? चलो देखिए, कट आउट, कट आउट करना किसी चीज को, जैसे मान लो कोई पिक्चर है, आपने कट आउट कर दिया उसको, राइट? कोई बुक में से अगर पिक्चर को आपने किसी चीज से कट किया तो उसका अलग से एक बन गया ना, बिल्कुल ही एक फेस कह लो, वो हो गया कट आउट। कट डाउन करना, ओके, कम करना, ओके, नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं, कट अप करना, कट अप, यस, देखिए कट अप के भी मीनिंग होते हैं। एंग्री के लिए भी यूज होता है, एक जो जोक है, कहते हैं ना इज अ कट अप मैन, बड़ा जो बड़ा जॉली नेचर का होता है, बड़ी जो जोक्स वगैरह क्रैक करने वाला होता है, उस पे भी हम लगा सकते हैं, राइट? तो दिस वन इज कट डाउन, कम करना। सिगरेट, यू शुड कट डाउन द अमाउंट ऑफ सिगरेट्स यू स्मोक, जितनी तुम्हारी जितनी सिगरेट्स लेते हो या स्मोक करते हो उनकी जो है मात्रा, अमाउंट कम करनी चाहिए। तो क्या आएगा? कट डाउन आएगा, कट आउट नहीं आएगा। कट आउट तो कोई चीज अगर आपने न्यूज़पेपर में से सपोज काटी तो वो उसका अलग से एक फेस बन गया। कट आउट करना, कट अप, किसी, अगर आप बोलिए तो एक एंग्री पर्सन के लिए भी यूज सकता है, जो एक कहते हैं कि कट अप मैन, जो एक जोक क्रैक करने वाला होता है, उसको भी हम बोल सकते हैं, राइट? तो 13, now we move on to the 13. You must accustom yourself with new ideas. New improvement, accustom yourself, get accustomed to या customs yourself. You must, custom एक ऐसा है जिसको जो हमेशा टू की फॉर्म लेता है। custom मीन्स आदी होना किसी चीज के, राइट? उस चीज के अनुकूल होना। कस्टम का है तो यहाँ पे क्या आएगा? टू आएगा, राइट? नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। कस्टम योर सेल्फ with get accustomed to, accustoms yourself to, so which one should be correct? Yes, which one could be correct? Accustom yourself with नहीं आएगा, custom yourself, yes, this one is not here. Custom yourself to, custom always take to, self के बाद क्या आएगा? to, आदि होना, right? Now we move on to 14th question. I contradicted against him. So I contradicted against him. So we think that there should be improvement. Let's see. No improvement. Contradicted with, only contradicted, or contradicted over. Yes, contradicted over. So which one should be correct? कॉन्ट्राडिक्टेड का मीनिंग होता है खंडन करना किसी चीज का, कॉन्ट्राडिक्शन होना किसी चीज में, वो सिचुएशन जिसमें the statement of position opposite to one already made. Denial, मना करना, राइट? मना करना फिर अगेंस्ट होना, दोनों तो साथ में नहीं चल सकते, नहीं हो सकता। I contradicted against him. कॉन्ट्रा का मीनिंग ही क्या होता है? अगेंस्ट, तो अगेंस्ट तो आएगा नहीं, इसका मीनिंग ही है मना करना, राइट? जब आपके कुछ आइडियाज हैं जो ओपोजिट होते हैं, उसके लिए लगाते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन। किसी का आइडिया कुछ है, मेरा कुछ है, कॉन्ट्राडिक्शन है अलग अलग, तो अगेंस्ट खुद ही एक मीनिंग है। नो इम्प्रूवमेंट, कॉन्ट्राडिक्टेड विद, कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड ओवर, क्या है? कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो है क्योंकि अगेंस्ट लगाया, कॉन्ट्रा का मीनिंग ही अगेंस्ट होता है, तो सी इज करेक्ट आंसर। विच वन इज करेक्ट आंसर? सी इज, ओके। 15th we have, now 15th we have, no sooner than it stopped raining the children went out. जैसे ही जो रेन बंद हुई तो बच्चे बाहर गए, एकदम से बाहर निकले। क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है? हैड इट स्टॉप रेनिंग आना चाहिए। यस। डिड इट स्टॉप रेनिंग, डिड इट तो नहीं आ सकता है। डिड हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? फर्स्ट फॉर्म लेता है, राइट? डिड क्या लेता है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। और यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है? स्टॉप लिखा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। यस। नो सूनर हैड इट स्टॉप रेनिंग, नो सूनर कभी हैड लेता ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं ये सेंटेंस।
क्या जरूरत नहीं हो तो ये भी है। तो बचा क्या हमारे पास? डिड इट। नो सूनर ऑलवेज टेक डिड इट स्टॉप रेनिंग देन। So whenever you have this kind of sentences, you are likely to write had, or you can say did. No sooner did it stop raining than the children went out. So 15 question we have done. I hope 15 question must be clear to all of you. Now we move on to 16th one. Okay, first we read the directions. First we read the directions. Direction 16 to 20, out of the four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. अब आइए हमारे पास कौन सा है अब कि हमें क्या है? मीनिंग मीन्स सिनोनिम्स। हम क्या करेंगे अब? सिनोनिम्स आ गए हमारे पास। क्या आ गए हैं अब हमारे पास? सिनोनिम, राइट। ठीक है जी, सिनोनिम्स करते हैं अब हम। सिनोनिम्स क्या होते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सिनोनिम दे कैरी सेम मीनिंग, राइट। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस प्रीव्यू करना, किसी चीज को दोबारा से व्यू करना, देखना, डिस्कशन करना, बहस करना, समरी होना किसी चीज की, या तो फिर रिपोर्ट होना। सिनॉप्सिस मीन्स समरी होना या एक डिजाइन जो तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। तो इससे साफ पता चल रहा है प्रीव्यू तो होगा नहीं हमारा, राइट। ये तो गलत गया। डिस्कशन होना ये भी है गलत। समरी, समरी समरी मीन्स बड़ा जिस्ट होना किसी चीज का। समराइज जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल समरी बताइए। जो आप सपोज अगर थीसिस भी लिखने वाले हैं तो थीसिस का क्या है? इसको सिनॉप्सिस क्या है? क्या किस चीज के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं इसको ब्रीफ में बताइए, तो क्या है? समरी, राइट। रिपोर्ट, रिपोर्ट तो बिल्कुल ही गलत है। सो सी इज करेक्ट आंसर, राइट। So next we have contentious means controversial. Controversial means विवाद होना, एक्स्ट्रावेगेंट होना, प्रेशियस होना। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब क्या होता है कि स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट कौन होता है? जो पैसा बहुत फजूल खर्ची करने वाला, राइट। प्रेशियस मीन्स कीमती। बेनवोलेंट, कंट्रोवर्शियल। हाँ जी, तो हमारे पास अब ये दो रह गए हैं। दो तो हमारे बिल्कुल हमने कट कर दिए हैं, राइट। तो क्या हमने किया है? दोनों को हमने बिल्कुल कट कर दिया है। तो हमारे पास क्या बचा है? हाउ मेनी आर लेफ्ट नाउ? controversial and benevolent. Benevolent, yes, means kind, means kind, right? So controversial means contentious का मतलब ही क्या होता है कि विवादित होना। तो controversial क्या है? करेक्ट, ये भी नहीं चल रहा। ये तो पैसे के साथ है, ये कीमती के साथ है। benevolent क्या है? ये kind है, तो ये करेक्ट है, राइट। So next we have 18th conjecture. Conjecture means कोई गेस करना, सपोजिशन करना। अब स्ट्राइफ, स्ट्राइफ क्या हो सकता है? स्ट्राइफ हो सकता है गेस, क्रिटिक एंड गैदरिंग। ये देखिए अब इसमें हमारे पास फोर हैं। फोर में से कौन सा जा सकता है? हाँ जी, कौन सा जा सकता है इसमें से? गेस, यस, गेस, स्ट्राइफ, क्रिटिक, गैदरिंग। स्ट्राइफ का मीनिंग क्या है? स्ट्राइफ का मतलब होता है एंग्री होना या बिटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यूज। कुछ डिसएग्रीमेंट होना, कुछ इश्यूज पे कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम कह सकते हैं। स्ट्राइफ का मीनिंग क्या है? कॉन्फ्लिक्ट होना, गैस करना। कंजेक्चर का मीनिंग अभी मैंने बताया। क्रिटिक का मतलब क्या होता है? जो किसी की खंडन करता है। अपोज करना। गैदरिंग का मतलब कलेक्शन हो गया। तो गैस इसके साथ बिल्कुल ठीक जा रहा है, राइट। तो हमें क्या फाइंड करने हैं? सिनोनिम। So this one is correct answer. Now we have brazen. 19th we have brazen. Yes. Brazen means shameless, trashy, modest, humble, melodramatic. Melodramatic.
प्रेजेंट का मीनिंग पहले मैं बता दूं आपको। प्रेजेंट का मीनिंग होता है बोल्ड। क्या मीनिंग होता है? बोल्ड। बोल्ड मीन्स विदाउट शेम। जिसको कोई शर्म नहीं होगी वो बोल्ड होगा। मेलोड्रामा मीन्स नाटक। शेमलेस मीन्स अभी पता चल गया है। मॉडेस्ट मीन्स हम्बल। राइट। मॉडेस्ट क्या है? हम्बल। लास्ट क्या है हमारा? विच वन वी हैव? ट्रैशी। विच लास्ट वी हैव? ट्रैशी। ट्रैश से बना ट्रैशी मीन्स कचरा। यही मीनिंग हुआ। ट्रैशी का अगर हम मीनिंग निकाले तो किस सेंस में आता है? इनसिग्निफिकेंट, पेटी, फ्रिवोलस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में निकम्मा। राइट। तो ब्रेजन का मीनिंग अगर बोल्ड या डेयरिंग है, विदाउट शेम है, तो मीनिंग क्या हुआ इसका? जिसको शेम नहीं है वो बोल्ड होगा। सो दिस वन इज करेक्ट। राइट। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। 20th. 20th is, now we have 20th. 20th is Zinx. 20th we have Zinx. Zinx means a person who brings bad luck. जो एक बैड लक लेके आता है, ठीक है, उस पर्सन को बोलते हैं कि बैड ओमेन बोल दो आप। राइट। स्पेल करना। जंक्चर। जंक्चर मीन्स क्या होता है? ये एक टाइम पे या मूवमेंट में होने वाला। राइट। टूअर। टूअर मीन्स किसी चीज टूअर पे जाना। कर्स। कर्स का मतलब अभिशाप। हाँ जी, अभिशाप हुआ ना। तो जिंक्स का मीनिंग भी क्या है कि जो बैड लक लेके आता है, कर्स है। या फिर स्पेल। स्पेल का मीनिंग क्या होता है वैसे? हाँ जी, स्पेल का मीनिंग वी हैव अ जादू मीन्स मैजिक। स्पेल का मीनिंग क्या होता है? जादू होना। राइट। तो जिंक्स का मीनिंग वे पर्सन है कि जो बैड लक लेके आता है। तो जंक्चर तो नहीं हो सकता। जंक्चर कहते हैं ना इस टाइम पे, इस प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म मीन्स इस टाइम पे। राइट। अ पर्टिकुलर टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम होता है। टूर नहीं जा रहा हमारे साथ तो क्या है? कर्स। कर्स क्या है? अब जिंक्स जो पर्सन लेके आता बैड लक और कर्स दोनों मिल रहे हैं तो बोथ आर सेम। ये भी नेगेटिव में जा रहा है, ये भी नेगेटिव में। जो बैड लक लेके आता है, और कर्स क्या है? अभिशाप करना, किसी को कर्स करना। राइट। तो दिस वन इज करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन टू 21. Direction. Just make it a habit. Whenever you try to solve questions, always do read direction. Out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words. Means this is one word substitution. So, what is one word substitution? Instead of using so many words, when we use a single word is called one word substitution. Like scientific study of earthquakes is called geography, cosmology, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो सकता है इसमें? अच्छा, जो अर्थक्वेक्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, ज्योग्राफी। यस। अगर हम बोले ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी क्या है? वो तो अर्थ की स्टडी है। एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ स्टार्स। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड या ह्यूमन बींग्स, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं। राइट। इसको ही बोलते हैं ना साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी की जो हम स्टडी को करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी स्टार्स की स्टडी को। ज्योग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ। तो बचा क्या हमारे पास? सेस्मोलॉजी मीन्स अर्थक्वेक्स की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? यस, उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। राइट। तो इसे क्या बोलते हैं? Seismology. This one is correct. The study of growing garden plants is called nursery, orchard, horticulture, nomenclature. Yes, nomenclature means किसी को कोई नाम देना, vocabulary होगी, शब्दावली जिसको कह सकते हैं। नर्सरी, नर्सरी क्या है कि जहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो करे जाते हैं। राइट। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि हॉर्टिकल्चर का मतलब है गार्डनिंग करना। राइट। ऑर्चर्ड क्या है? बगीचा। तो नर्सरी, नर्सरी तो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो हॉर्टिकल्चर इज द करेक्ट आंसर।
right? Which one is correct? Horticulture is correct answer. Is it okay? Yes. Now we move on to 24th. Okay, 23rd, sorry. One who copies from other writers is called offender. Offender बोला जाता है. Offender means क्या होता है? अपराधी. Offender क्या होगा? अपराधी, जिसको अपराधी कहते हैं. Offender कौन होगा? जो अपराधी, अपराध करने वाला, कोई क्रिमिनल हो गया. Yes, plagiarize, वो जो किसी के थॉट यूज करता है. वन हु यूजेस somebody's thoughts. कंटेंडर, कंटेंडर का मतलब क्या है? अ ग्रुप और पर्सन compete with others to achieve. ऐसा पर्सन जो अपने जो है गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरे के साथ compete करता है, राइट? तो बचा क्या हमारे पास? प्लेजराइज. प्लेजराइज क्या होता है? जो किसी के थॉट्स वगैरह को यूज करते हैं. कुछ क्या होते हैं? नॉवलिस्ट हैं या फिर राइटर हैं, किसी का आइडियाज को कॉपी कर लेते हैं, उसको बोलते हैं. यस, उसको बोलते हैं हम प्लेजराइज, राइट? सो दिस वन इज करेक्ट. 24th we have the belief that God is in everything including nature. Nature के साथ क्या है? बिलीव किया जाता है. जो बिल्कुल नेचर में विश्वास करता है. ओके. नेचुरलिज्म, जो आदर्शवादी है, जो बिल्कुल नेचर में विश्वास करने वाला. पैंथेसिज्म इज वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड, जो दो से ज्यादा करता है, एक से ज्यादा गॉड की वर्शिप करता है. नेचुरलिज्म क्या होता है? मैं फिर बता देती हूँ. आइडिया और बिलीव दैट इज जो नेचुरल है, राइट? मिस्टिसिज्म मीन्स जो इरेशनल थॉट है, जिसकी इरेशनल मीन्स जो उसकी जो थॉट है वो बड़ी रेशनल नहीं है, लॉजिक वाली नहीं होती, क्लियर नहीं होती है, राइट? तो जो कहता है कि दैट गॉड इज एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, तो वो किसमें विश्वास करेगा? नेचुरलिज्म में, राइट? ग्रेजुअली एडवांस, धीरे धीरे एडवांस होने वाला, आगे बढ़ने वाला. इवेडेड, इवेडेड का मतलब तो होता है एस्केप करना. इवोल्यूट. एडवांटेज मीन्स एडवांटेज. एडवांटेज का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज का मौका है, फायदा, राइट? एवॉल्व होता है डेवलप होना, विकसित होना, राइट? विकसित होना. इवोल्यूट. इवोल्यूट का मीनिंग क्या होगा? यस, इवोल्यूट का मीनिंग क्या हो सकता है हमारे पास? अभी तक हमने पढ़ा है, किसके बारे में हमने बताना है कि ग्रेजुअली एडवांस, जो क्या है? धीरे धीरे एडवांस हुआ है. यस. नेक्स्ट वी हैव एवोल्यूट. एवोल्यूट मीन्स सेंटर. एवोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? सेंटर के लिए आता है. इवॉल्व का मतलब बढ़ना, आगे धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है? धीरे धीरे. So this one is correct answer. So D is the correct answer. So now for 25 questions are clear. I hope you must have understood by now that how we have to choose the correct answer. So your first thing I want to tell you that you should have a good vocabulary. You should have a great mastery of vocabulary if you want to gain good marks in Rashtriya Military School, Sainik School, because 25 questions, mostly 90 or you can say 80% questions, they are from vocab, right? So this is my advice to you to enhance your vocabulary. So it will help you a deal, right? So if you keep on solving such papers, it's gonna help you in near future. Okay, now time has come to take a leave of you now. So if you like my video, don't forget to press the bell icon right below. Thank you so much. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।